on fulfillment of prescribed conditions have been found eligible for the Institute Gold Medals have been printed in the brochure published on the 66th convocation. President of India Gold Medal, Sri Orkoprabha Sengupta, an outgoing student of the BTech Honours course in Electrical Engineering, for having obtained the highest cumulative grade point average among all successful students of the BTech Honours and B.Arch Honours course of the year. I request Sri Orkodev Sengupta to please come to the presentation area and receive the President of Gold Medal. Prime Minister of India Gold Medal, Sri Anirudh Deb, an outgoing student of the 5-year integrated MSc course in physics, for having obtained the highest cumulative grade point average among all successful students of the dual degree and 5-year integrated MSc course for the year. Sri Anirudh Deb could not attend the convocation. He may be awarded Prime Minister of Gold Medal in absentia. I made some really great friends and made some really good memories. It provided me with several opportunities and opened a lot of doors. I am extremely indebted to everyone who has been a part of this journey. Thank you very much. Dr. Bidhan Chandra Rai Memorial Gold Medal, Miss Hima Shweta N, an outgoing student of the BTech Honours course in Electronics and Electrical Communication Engineering, has been found to be best of all-rounder among all successful students of BTech Honours and B.Arch Honours course of the year. I request Ms. Hema Shweta N to please come to the presentation area and receive the Dr. Bidhan Chandra Rai Memorial Gold Medal. Dr. Gyan Chandra Ghosh Memorial Gold Medal, Sri Tokala Yashwant Sri Shai Santosh, an outgoing student of the dual degree BTech Honours plus MTech course in Computer Science and Engineering, has been found to be best of all-rounder among all successful students of the dual degree and integrated MSc courses of the year. I request Sri Tokala Yashwant Sri Shai Santosh to please come to the presentation area and receive the Dr. Gyan Chandra Ghosh Memorial Gold Medal. Professor Jagadish Chandra Bose Memorial Gold Medal, Miss Ipshita Roy, an outgoing student of 2-year MSc course in chemistry, for having obtained the highest cumulative grade point average among all successful students of 2 years MSc course of the year. I request Ms. Ipshita Roy to come to the presentation area and receive the Professor Jagadish Chandra Bose Memorial Gold Medal. The Chairman Board of Governors Gold Medal for undergraduate category, Sri Chandan Bhaumik, an outgoing student of the 2-year MSc course in mathematics, for all-round performance among all outgoing differently abled students of BTech Honours, B.Arch Honours, dual degree, 2-year and 5-year MSc courses admitted through JEE Advance of the year. I request Sri Chandan Bhaumik
to please come to the presentation area and receive the Chairman Board of Governors Gold Medal undergraduate category. Metallurgical and Materials Engineering, I. Anand Kumar. Five-year B. Arch Honors, Architecture, Runjhun Varti Goswami. Five-year Integrated MSc, Chemistry, Ekrup Kaur Chima. Applied Geology, Ishika Agarwal. Economics, Rishabh Bagri. Mathematics and Computing, Harshit Jitendra Matwani. Two-year MSc, Chemistry, Ipshita Roy. Geophysics, Aditya. Mathematics, Orkodev Ghosh. Geology, Pratyusha Sarkar. Agricultural and Food Engineering, Raj Rishi A. Vaisare. You can keep quiet. Biotechnology and Biochemical Engineering, Piyush Nanda. Electrical Engineering, Vaisareddy Girija. Industrial and System Engineering, Chauda Chaukit Kishore. Manufacturing Science and Engineering, Ayush Mohanty.
Ocean Engineering and Naval Architecture, Aditi Ajoy Kamli. Aerospace Engineering, Prithish Mukherjee. Geology and Geophysics, Karmanav Pavel. सर, आपके यशस्वी नेतृत्व और डॉक्टर निशंक, श्री धोत्रे जी एवं श्री अमित खरे जी की प्रशासनिक दक्षता और दिशा निर्देश हमारे लिए पिछले 13 महीने में मार्गदर्शक रहा है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में संस्थान ने बहुत से कदम उठाए हैं तथा इसी साल से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में नए लड़कों को कई चीज़ों का प्रावधान कर दिया है और आगे भी बाकी जो है रह गए हैं उसको हम लोग प्रावधान करेंगे। हम बहुत ही आपके आभारी हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आज हमको दिशा देंगे। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री संजय धोत्रे जी, आईआईटी खड़गपुर के चेयरमैन श्री संजीव गोयनका जी, डायरेक्टर श्री वी.के. तिवारी जी, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, सभी साथी कर्मचारी, पेरेंट्स और मेरे युवा साथियों, आज का दिन आईआईटी खड़गपुर के सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है। आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। आप सभी से सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीदें नहीं जुड़ी है, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। इसलिए ये जो डिग्री, ये जो मेडल आपके हाथ में है, वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। आप वर्तमान पर नजर रखते हुए फ्यूचर को भी एंटीसिपेट करें।
हमारी आज की जरूरतें क्या हैं और 10 साल बाद क्या जरूरतें होने वाली हैं, उनके लिए आज काम करेंगे तो कल के इनोवेशंस भारत आज बनाएगा। साथियों, इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। इसलिए आज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन का जो भंडार है, उसमें से प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न, उसको आप बहुत बारीकी से देख पाते हैं। हर प्रॉब्लम के साथ पैटर्न जुड़े होते हैं। समस्याओं के पैटर्न्स की समझ हमें उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। ये समझ भविष्य में नई डिस्कवरीज, नए ब्रेक थ्रूज, उसका एक आधार बनती है। आप सोचिए, आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने जीवन बचा सकते हैं, देश के संसाधनों को बचा सकते हैं। अगर आप पैटर्न को समझे और उसे समझकर समाधान निकालें, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दें। साथियों, जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। हमारे यहां कहा गया है, शनैहि पंथाः शनैहि कंथा शनैहि पर्वत लंघनम शनैहि विंध्या शनैहि वित्तम पच्चतानि शनैहि शनैहि। यानी जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है, धीरज रखना। विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है। लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग, इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है। आप सभी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने जो सोचा है, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव है
उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। आपको याद रखना है कि हर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है। मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूं। ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई है। अब IITs को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी IITs जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आइसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए, भारत की पहचान को और मजबूत करें। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं IIT के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है, वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम IIT के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है? भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स
उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है। हमने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने कहा था, गेटिंग योर नेशन मीन्स रियलाइजिंग योर ओन सोल इन एन एक्सटेंडेड वे। When we start recreating our nation through thought, work and service, then only can we see our own soul in our nation. आज खड़गपुर सहित देश के पूरे आईआईटी नेटवर्क से देश की ये अपेक्षा है कि वो अपनी भूमिका का विस्तार करें। आपके यहां तो पहले से ही इसके लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी यहां महत्वपूर्ण इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है। एआई से जुड़ी एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल लेवल पर परिवर्तन करने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में भी आपके सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं। अब आपको हेल्थ टेक के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को लेकर भी तेजी से काम करना ही है। जब मैं हेल्थ टेक की बात करता हूं तो सिर्फ डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी गैजेट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि एक इकोसिस्टम की बात करता हूं। प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक के आधुनिक समाधान हमें देश को देने हैं। कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरे हैं। लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाइयां तो घरों में रखते थे, लेकिन अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए इक्विपमेंट घर में रखते हैं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी इक्विपमेंट भी घरों में बढ़ रहे हैं। भारत में पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एफोर्डेबल हो, सटीक जानकारी देने वाले हो, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए समाधान विकसित करने होंगे। साथियों, कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। आपके आइडिया के इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी आपको मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसके बारे में मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने मैप और जियो स्पेशियल डेटा को कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि जिमखाना में आप लोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स
और दूसरी एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे ज्ञान और नजरिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का विजन रखा गया है। मुझे खुशी है कि आईआईटी खड़गपुर इसमें पहले ही बेहतर काम कर सकता है। मैं आईआईटी खड़गपुर को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। आप अपने अतीत को, अपने पुरातन ज्ञान विज्ञान को जिस प्रकार भविष्य के अपने इनोवेशन की ताकत के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। अपने वेदों से लेकर उपनिषदों और दूसरी संहिताओं में जो ज्ञान का खजाना है, उस पर आप एम्पिरिकल स्टडी उसको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। साथियों, इस साल भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है। आईआईटी खड़गपुर के लिए ये वर्ष इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये स्थान जहां आप साधना करते हैं, जहां आप जीवन को नया आयाम देते हैं, ये स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के महान अतीत से जुड़ा रहा है। ये भूमि आंदोलन के युवा शहीदों की, टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नैतिकता की साक्षी रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि बीते सालों में जो 75 बड़े इनोवेशन, 75 बड़े इनोवेशन, बड़े समाधान आईआईटी खड़गपुर से निकले हैं, उनका संकलन करें, उनको देश और दुनिया तक पहुंचाएं। अतीत की इन प्रेरणाओं से आने वाले वर्षों के लिए देश को नया प्रोत्साहन मिलेगा, नौजवानों को नया आत्मविश्वास मिलेगा। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। देश की अपेक्षाओं को कभी भूलेंगे नहीं। देश की आकांक्षाएं ही आज का आपका प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र दीवार पर टिकाने के लिए या कैरियर के लिए भेजने के लिए सिर्फ नहीं है। ये जो आपको आज सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो 130 करोड़ देश की आकांक्षाओं का एक प्रकार का मांग पत्र है, विश्वास पत्र है, आश्वासन पत्र है। मैं आपको आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता की आपके प्रति जो अपेक्षा है, आपके अध्यापकों ने आपके लिए जो मेहनत की है, ये सब कुछ आपके पुरुषार्थ से, आपके सपनों से, आपके संकल्प से, आपकी यात्रा से संतोष प्राप्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यह दिन हमारे लिए बहुत चिरस्मरणीय रहेगा। हम लोग आपके बताए हुए चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आसपास के गांवों में एनएसएस सहित अनेक प्रकल्प सेवा भाव से लगे रहते हैं। हम लोग आपने जो बताया कि पैटर्न से पेटेंट तक, यस, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सेल्फ 3 ये बहुत